बोलो भाई, कौन करने वाला है? Ma'am, I'll read. Archana. Yes, second, Archana. Okay, not open the page. 1 second. आपको हो सकता है एवरीडे थोड़ा सा पहले दिन से ज्यादा काम करना पड़े, बट इट इज वर्थ इट. Day 4. D4. Letting go of your past. Today you start let go. Ma'am, 1 second. My page is gone. Sorry. Today you start to let go, release blame, forgive, and move on. ओके, तो हम लोग जहां पर भी, आपने बहुत बार सुना होगा कि जहां पर भी आज हम हैं, इट इज बिकॉज ऑफ आवर पास्ट. और वो पास्ट की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते, बिकॉज हम अपने पास्ट को छोड़ नहीं पाते. किसी ने हमारे साथ बुरा किया या किसी ने हमें कुछ बोल दिया, हम उसको भूल ही नहीं पाते हैं. हम उसको पकड़ के बैठे रहते हैं कि मेरी भाभी ने या मेरे भाई ने या मेरी सास ने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया था. मतलब आई हैव बीन डूइंग सो गुड टू हर एंड so good to them, how dare they speak like this to me, and we are just holding on to it, and that is not letting us move forward, not only in the relationship but also in our own life, because वो negative energy हमें positivity की तरफ जाने नहीं देती है. It is holding on to us rather than we holding on to it. तो उसको लेट गो करके जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, आज का चैप्टर उसके बारे में है. एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इसमें आपको काफी सोल सर्चिंग करनी है आज. तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. How did you do yesterday? Do you feel that you are learning to let go of some of your past hurts and tune your self talk to a more positive channel? I am so proud of you for loving yourself enough to do these lessons every day and to use your mirror work to reprogram all the old tapes you have been playing in your head. Yeah, so I am also very proud of all of you, that you are consistently doing this mirror work with me every day and coming for the sessions, because it shows your commitment. And जब आपने कल भी अपने नेगेटिव थॉट्स को कन्वर्ट किया, you spoke to yourself with love, तो आपने पास्ट का कुछ छोड़ा है. जो पास्ट में से आपके कोई नेगेटिव थॉट जो अपने बारे में आ रहा था, आपने उसको छोड़ा है. So you are letting go of certain things from the past. ठीक है, तो आज का चैप्टर इज अ नेक्स्ट स्टेप, उसमें आगे की तरफ का एक और स्टेप है. हाँ जी, पढ़े. Ever since we were ever since we were little children, every message we have received, everything we have said, everything we have done, everything we have experienced has been recorded and stored in the filing cabinet in our core, our gut, our solar plexus. I like to imagine that there are little messengers in there and that all our thoughts and experiences are recorded on tapes that the messengers put in the appropriate files. ओके, सो इमेजिन कि जितने भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, थॉट्स हैं, जो कुछ भी हमने अब तक एक्सपीरियंस किया है, वो सब एक फाइल में रिकॉर्ड होता चला जाता है, डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स और अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंसेस. और वो सारा का सारा हमारे सिस्टम में, हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोर्ड है. Now you can imagine that it is stored in your gut or in your solar plexus, wherever you imagine. but ये कहीं पर stored है. So that reminds me, I was speaking to a friend of mine and he told me, तूने अपनी आकाशिक रीडिंग कराई है? I said, what is Akashic reading? So it is connected to that. That's why I'm sharing it. So he said, Akashic reading is that हमारे जितने भी अभी तक के हमारे सोल ने जर्नी की है, और वहां पे हमने जो कुछ भी सोचा है, किया है, या एक्सपीरियंस किया है, मतलब जो हमने एक्शंस लिए हैं, सोचा है, फीलिंग्स थी हमारी, वो सब स्टोर्ड है. या
all stored in files, and those files are in some library. वो library कहीं आकाश में है, you know, it is somewhere in the universe. And Akashic reading वाले क्या करते हैं? They access those files. I'm sorry. People who are trained into doing the Akashic reading, they actually reach out to the people who are actually caretakers of those, जो आपको protect कर रहे हैं, आपके angels हैं. They get in touch with them and you ask questions and then they access your files and tell you कि आपने कौन से जन्म में कुछ किया था जिसकी वजह से आप यहाँ पे अटके हुए हो. So when I was reading this, I was just thinking, "Arey, this sounds so familiar to Akashic reading." Akashic reading, that library or that storage is somewhere which we know we can't see, we just imagine. So imagine that you have a storage system in your system. आपकी body में कहीं stored है. आपका हर experience, आपका हर thought, आपकी हर feeling बचपन से लेके आज तक, और वो कहीं ना कहीं पहले टेप्स होती थी ना, टेप्स में रिकॉर्ड होके, जब ये बुक लिखी गई तब टेप्स होती थी, वो टेप्स में रिकॉर्ड करके कहीं पे स्टोर की गई है. तो जस्ट इमेजिन दैट कि आपके सारे की सारी स्टोरेज आपके अंदर है. हाउ टू एक्सेस इट नाउ? हाँ जी. Yes, ma'am. Today we are going to. No, many of us have been accumulating files with labels like I am not good enough, I'll never make it, I don't do anything right. We are buried under piles of old negative tapes. Today we are going to surprise the little messengers. We are going to do our mirror work and send new messages to our core. I am willing to let go. I release blame. I am ready to forgive. The messengers will pick up these new messages and say, "What's this? Where does this get filed? Where does this get filed? We have never seen this one before." Can you imagine? Yeah, pause. So अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया या जो भी हमारे बिलीफ्स हैं, उसके अलग अलग लेबल्स की फाइल्स बनी हुई है, सब्जेक्ट वाइज बनी हुई है. तो जो भी जब भी आपने बोला कि अरे ये मेरे बस का नहीं है, आई कांट डू इट, यू नो, आई एम नॉट गुड इनफ, वो उस वाली फाइल में स्टोर हो गया. ऐसे ही हमारे कुछ और जैसे अलग अलग हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं, उसके अलग अलग लेबल्स की फाइल्स हैं, वो उसमें स्टोर हो गई. अब हमने जब मिरर वर्क करना शुरू किया और हमने बोला कि आई एम रेडी टू फॉरगिव, यू नो, एंड आई एम, यू नो, आई एम गुड, आई एम मोर इंटेलिजेंट देन आई थिंक, आई रियलाइज्ड और व्हाटएवर. सो अब जब ये अफर्मेशंस कर रहे हो तो जो मैसेंजर, जो फाइल करने वाला मैनेजर है, बड़ा कंफ्यूज हो रहा है. अरे ये कहाँ फाइल करूं, इसकी तो कोई फाइल ही नहीं है मेरे पास. So just imagine that you're putting that person in a dilemma कि मैं कहाँ फाइल करूं. But imagine how you know कितना enjoyable है कि हम उसको confuse कर रहे हैं. And then slowly those files will get replaced with the new files which are getting created now. Yeah, please read. Can you imagine how wonderful it would be if every day you learned a new way to let go of the past and create harmony in your life? My dear ones, you have already started by doing your daily mirror work. Each day you are clearing out the layers, the blocks of the past. Each time you say an affirmation in front of the mirror, you are removing another layer. What are the layers of your past that are keeping you from living a happy and fulfilling life? What are the blocks preventing Preventing you from. I think we have trouble identifying these blocks because we honestly don't know what we want to let go of. We know what is not working in our life and we know what we want to have in our life. Yet we don't know what's holding us back. Pause. Okay, now as I was also talking to you that we have put so many layers, हमने इतनी सारी layers ओढ़ी हुई हैं अपने ऊपर,
कि हमें जो रियल हम है हमें दिखते ही नहीं है, एंड वी नो हमारी लाइफ इज नॉट वर्किंग, बट व्हाई इज इट नॉट वर्किंग? कौन सा ऐसा ब्लॉकेज है, कौन सा ऐसा बिलीफ है, कौन सी ऐसी कौन सी हमारी नेगेटिव थॉट है फ्रॉम द पास्ट विच इज ब्लॉकिंग अस? वी डोंट नो। कौन सा ब्लॉक है जिसको हमें रिमूव करना है, हमें नहीं मालूम। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न कि वो कौन से ब्लॉक्स हैं और उनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। या लेट्स रीड। Everything your everything in your life is a mirror of who you are. Just as a mirror reflects your image, your experiences reflect your inner beliefs. You can literally look at your experiences and determine what your beliefs are. If you look at the people in your life, you will see that they are all mirroring some belief you have about yourself. If you're always being criticized at work, it is probably because you are critical and have become the parent who criticized you as a child. Okay, so I just want you to read this paragraph very carefully once again and just try to understand what this paragraph is saying, because it's a very deep paragraph. It has a lot of depth into it. If you understand this, you will understand the whole chapter, because the whole chapter is based on this. Can you just read it again, please? Yes, ma'am. Everything in your life is a mirror of who you are. Just as a mirror reflects your image, your experiences reflect your inner beliefs. Okay, so this is very important. आप जब मिरर में देखते हैं तो आपको अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देता है ना, इट इज मिररिंग, इट्स मिररिंग योर आउटर रिफ्लेक्शन। सिमिलरली आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो हैं, दे आर मिररिंग योर बिलीव्स। वेरी सिंपली पुट, इफ लाइक वंदना वाज शेयरिंग, उसका बिलीफ था कि शी कैन नॉट मेक कड़ी, एंड हर एक्सपीरियंस इन लाइफ वाज शी वाज नॉट एबल टू मेक कड़ी। It's very simple example. Similarly, if you start looking at your life, whatever experiences you have in your life are reflections of your beliefs. And we know that we have limiting beliefs about ourselves. But वो क्या beliefs हैं, उसको कैसे पता करना है? You can see it. You can literally look at your experience and determine what your beliefs are. अगर आप अपने experiences को लाइफ में देखना शुरू करोगे every day, आप जो भी experience करें उसका उसके पीछे belief क्या है, because वो belief ही mirror हो रहा है। जैसे आपका reflection mirror होता है mirror में, ऐसे आपके life के experiences में आपका belief mirror होता है। And you can see, so when somebody is this is very important, just read this. If you look at yourself, if you look at the people. If you look at the people in your life, you will see that they are all mirroring some belief you have about yourself. Okay, pause. Whenever somebody is treating you or आपके साथ जिस तरह से वो बिहेव करता है, वो वही मिरर कर रहा होता है जो आपका अपने बारे में बिलीफ है। जैसे उसने बोला, फॉर एग्जाम्पल, somebody you are being criticized at work, that is mirroring your belief about criticism. You are criticizing people at home. Maybe you are a critical parent. Yeah. And because you are critical parent, or your parents were critical of you when you were child, you have taken that belief of criticism, and when you are getting criticized, you're not liking it, but it is being mirrored in your life. जैसे हमने मैजिक में भी बोला था, what you give you get. So this is a different dimension of the same thing, कि जो आपके अंदर बिलीफ है वही आपकी लाइफ में आपको एक्सपीरियंस होगा, वही मिरर होगा आपकी लाइफ में। गोइंग फॉरवर्ड यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर बिकॉज व्हेन यू डू द जर्नलिंग पार्ट ऑफ इट। हाँ जी, पढ़ें। If you are always being criticized at work, it is probably because you are critical and have become the parent who criticized you as a child. Yeah. Remember, when something that's happening in your life
does not feel comfortable for you, you have the opportunity to look inside and ask, how am I contributing to this experience? What is it within me that believes I deserve this? How can I change this belief? How can I forgive myself and my past and learn to let go and move on? Let's affirm I let go of old limitations and beliefs. I let go and I am at peace. या सो अभी आपके लाइफ में जब भी कुछ होता है ना, आपको यू हैव टू टेक अ पॉज एंड गो इनसाइड, इंट्रोस्पेक्ट करो कि मैं कहाँ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ इस चीज, इस एक्सपीरियंस के लिए, या ऐसा क्या है जिसकी वजह से मुझे ये एक्सपीरियंस हो रहा है, ऐसा क्या बिलीफ है मेरा अपने बारे में, that people are treating me like this. So this is going to be a very thought provoking kind of a session. Every day it is going to get deeper. तो आपने अपने आप के अंदर ढूंढना है, अगर आपका एक्सपीरियंस आज लाइफ में ऐसा कुछ हुआ कि आपको अच्छा नहीं लगा, तो आपने ये ढूंढना है कि इसमें मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसमें, मैंने क्या ऐसा बिलीफ अपना पकड़ के रखा हुआ है दैट इज गेटिंग मिरर्ड। अगर आपने पहला वाला पैराग्राफ समझा है, तो वट एवर पीपल आर गिविंग इट टू यू इज वट इज यू आर बिलीविंग अबाउट योर सेल्फ। अब वो आपने ढूंढना है कि मैंने अपने बारे में वो क्या बिलीव बनाया हुआ है, वो ऐसा कौन सी पास्ट की चीज है जिसको मैं छोड़ नहीं पाया हूँ, छोड़ नहीं पाई हूँ, या किसको मैंने फॉरगिव नहीं किया है जिसकी वजह से मुझे ये बार बार ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है। तो यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग एट दैट एंड यू हैव टू अफर्म दैट मैं अपने लास्ट पास्ट के जितने भी लिमिटेशंस हैं या बिलीव्स हैं, आई एम लेटिंग गो ऑफ दैट एंड आई एम एट पीस। पीस पे तो तभी होगे ना आप, यू विल फील ओनली पीसफुल when you let go of past, when you are not holding on to any criticism, resentment, guilt, you know, all these things are actually giving us that experience, right? So let's see आज का mirror work क्या है। Yeah, please read. Your day four mirror work exercise. Number one, stand in front of your bathroom mirror. Number two, take a deep breath and as you exhale, allow all the tensions to leave your body. Number three, look at your forehead and imagine that you are pressing a button that ejects a disc of all the old beliefs and negative thoughts that have been playing in your head. Reach up and imagine that you are pulling this recording out of your head and throwing it away. Okay, so all the people who have been working on computers know how we used to have disks in the computers, and we used to just press a button and eject those uh, disks। हार्ड, वो जो साइड में होता था ना हार्ड डिस्क के अंदर वो बना होता था जिसके अंदर डिस्क लगता था, आजकल तो होता नहीं है। इवन इन द लैपटॉप्स वी यूज्ड टू हैव ना, साइड में होता था, you have to put the CD in that, and then you can just press the side button and it used to come out, and then you take it out। तो ऐसे आपको इमेजिन करना है कि आपके दिमाग माथे के ऊपर वो अंदर आपके वो डिस्क लगी हुई है, एंड यू जस्ट हैव टू प्रेस अ बटन। आप यहाँ प्रेस करो, यहाँ प्रेस करो, जहां आपको लगता है कि कंफर्टेबल लगता है। आई थिंक साइड में ही बेटर है तो आप कहीं से भी इसको प्रेस कर रहे हो और वो इजेक्ट हो रही है बाहर, ऐसे आपका डिस्क बाहर, डिस्क में जिसमें लगती है वो बाहर आया और उसमें से आपने डिस्क निकाली। वो डिस्क में क्या है, आपकी पुरानी सारी प्लानिंग्स ऑफ जो भी बिलीफ्स है जो आपने प्लांट की हुई है उसके अंदर, आपने उसको निकाला और उसको आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, आपने उसको थ्रो कर दिया। सो दिस इज व्हाट यू सपोज टू इमेजिन। ओके, वो इमेजिन करने के बाद क्या करना है, लेट्स रीड। Number four, now look deeply into your eyes and tell yourself, let's make a new recording of positive beliefs and affirmations. Number five, say these affirmations aloud. I'm willing to let go. I release, I let go. I release all tension. I release all fear. I release all anger. I release all guilt. I release
all sadness. I let go of all limitations and beliefs. I let go and I am at peace. I am at peace with myself. I am at peace with the process of life. I am safe. Okay, so अभी क्या करना है? First, you have to stand in front of the mirror, take deep breath. आपने एक्सेल करते हुए सारी टेंशन को रिलीज करना है. देन आपने अपने बटन को प्रेस करना है. उसमें से आपने सीडी को इजेक्ट करना है. उस सीडी को उठा के आपने फेंक देना है ऑफ द ओल्ड रिकॉर्डिंग्स. एंड देन लुक इनटू योर आईज एंड से लेट्स स्टार्ट न्यू रिकॉर्डिंग्स. आज से हम नई रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं. अब उसके बाद क्या रिकॉर्डिंग शुरू करनी है, वो ये पॉइंट्स हैं. अब आपको हो सकता है याद ना रहे बिकॉज ये काफी सारे पॉइंट्स हैं. तो बेस्ट इज राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, place it on the mirror and stand in front of the mirror and just read it. Read one line, look into your life and repeat it. Read one line, repeat, look into your eyes and repeat it. That way you will be able to do it. Otherwise आपको एक लाइन याद रहेगी, एक भूल जाएगी, या आपको लगेगा यार मैंने सेंटेंस उल्टा सीधा कर दिया. तो बेस्ट है एक पेपर पे लिख लो, या इसी की इसी को फोटो खींच लो मोबाइल पे, इतने पोर्शन की, उसको एनलार्ज करके होल्ड इट इन फ्रंट ऑफ यू and just read it from there and repeat it looking into your eyes. That way you will be able to do it. Hanji, please. Now, repeat these affirmations 2 or 3 times. Yeah. Number 7, throughout the day, whenever any difficult thoughts arise, take out your pocket mirror and repeat these affirmations. Become familiar with them so that repeating them becomes a part of your daily routine. Okay. तो अभी जब भी आप ये affirmations कर रहे हो, उन्होंने लिखा है 2 to 3 times. और 3 times करने से क्या होता है? If you do less, you all magic people. Why do we say thank you 3 times? What is number 3 for? Number magical of number. What is the magical number for? सब भूल गए? Universal energy. सब भूल गए? Universal energy. No, सब भूल गए? 3 बार बोलने से वो इम्प्लांट हो जाता है माइंड में. अरे if you say it 3 times, it gives birth to it's a number of creation. Yeah, it gives birth to it's a number of creation. So when you are saying this, you are actually creating this into your life. तभी हम thank you पहले बोलते थे ना, before asking for something, as if we have received it, because we are creating that experience in our life. So similarly, when you're doing these affirmations, do it 3 times. Yeah, you're creating it. Let's apply that question. Yeah, I'm sorry to interrupt. I have a question in number 5 affirmation. I was reading it. It's written, I release all tension. I release all fear. I release all anger. Anger, fear, tension, guilt. All these are negative terms. Yeah. But if you're affirming negative terms, like this came into my mind, so I'm asking you, like, do we use these negative words, or we use I am brave, or I am happy, or I am like, how do we put it? Okay. I got your question. Now, what is the chapter about? To let go of the past. Yes. तो हमने जब पास्ट को रिलीज करना है, तो पास्ट के जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उनको पहले साफ करेंगे ना. And if you see the last lines, what are the last lines? Last line, I let go and I am at peace. I'm at peace with myself. Yes. And I'm at peace with the process of life. I'm safe. Yes. So once you let go of all those things which are holding you back, and then you say that I am at peace. Okay. Yeah, that is the process. Okay. Yeah, because हम let go कर रहे हैं past का, जो past हमें hold करके बैठा है. तो हमने जब I'm sorry, जो हमने वो should का लिखा, या हमने जो भी negative अपने बारे में सोचा हुआ था उसके बारे में लिखा, पहले हमने उसके बारे में लिखा ना, उसके बाद हमने अपना positive affirmation लिखा है.
If you remember journaling में जो हमने करा है, Yes, तो हमने ma'am. पहले लिखा आई एम नॉट गुड इनफ एंड देन आई सेड नो आई एम, उसके बाद हमने उसको पॉजिटिवली लिखा आई एम मोर इंटेलिजेंट देन आई रियलाइज, आई एम स्मार्ट, आई एम अ मैग्निफिसेंट पर्सन, राइट? पहले हमने वो नेगेटिव को लिखा, उसको इरेज करके फिर हमने पॉजिटिव को रखा ना. Okay. तो इसमें भी हमने पहले लेट गो करना है इन सबको, उसके बाद वी विल बी एट पीस ना. अगर ये सब पहले जंक वहां भरा हुआ है तो वो पीस कहाँ से आएगा ना. जब हमने उसको इजेक्ट करके फेंक रहे हैं तो ये वो प्रोसेस है इजेक्ट करके फेंकने का. हमने विजुअलाइज किया कि हमने एक कैसेट निकाल के उसको फेंक दिया, बट ये सब जो रिकॉर्डिंग कैसेट पे है इसको इरेज भी तो करना है ना हमें. वो तो हमने विजुअलाइज करके फेंक दिया, बट जो यहाँ पर है उसको भी तो निकालना है ना. वो तो सिंबॉलिक था ना. Okay, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे Thank you, ma'am. you are doing the process. Yeah. Does Thank it you, answer ma'am. your question? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Please continue. The power is within. Number 7, I did not read. Yeah, read. Throughout the day. Yeah, Throughout you've the read day. it. You've read it. I've read. You've read it. Whenever you're feeling a challenging situation, just take out the mirror and ये affirmation अपने मोबाइल पे इतना portion आप इसको screenshot लेके रख लो, so that whenever you are traveling or wherever you are and you suddenly feel that कुछ challenge आ रहा है आपको, just take out the mirror and start reading these affirmations and look into your eyes and just keep repeating it. Yeah, that is what you're supposed to do. Okay. Yeah, the power is within you. Yeah. So this, one second. This is a very important part of the exercise of each day, and today's exercise is very important. Please pay very attentively इसको सुनिएगा और इसको करना कैसे समझ लेना प्लीज. हाँ जी पढ़े. The power is within you. Your day for journaling exercise. Number 1, I find that most of the problems in our lives are caused by what I call the big 4: criticism, fear, guilt, and resentment. In your journal, create 4 columns, heading each with one of the big 4 categories. Think about what role they play in your life. Write your thoughts and feelings about each category in the appropriate column. Okay, अभी करना क्या है? It says हमारी लाइफ में जो भी ऐसी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, उसके पीछे जो है ये 4 हैं. ये 4 ऐसे महानुभाव है जिनकी वजह से हमारी जिंदगी की बैंड बजी हुई है. तो आपने करना क्या है कि अपनी नोटबुक में आपने 4 कॉलम्स बनाने हैं और उसपे आपने लिखना है हेडिंग क्रिटिसिज्म, फियर, गिल्ट एंड रिजेंटमेंट. अब इसके नीचे आपको क्या लिखना है? आपको क्रिटिसिज्म में लिखना है कि आपको क्या क्या चीजें हैं जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं या आप क्रिटिसाइज करते हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं आपकी लाइफ में. फियर क्या है आपकी लाइफ के? what are you fearful about? आपको ऐसा क्या लगा कि मैंने ये क्यों किया जिसकी वजह से आप वो गिल्ट को होल्ड कर रहे हो? There are certain things in our life we have done and we are feeling guilty about them even today, right? And then resentment. किसी ने कुछ बोला and you didn't like it and you're resenting it कि मैं ऐसा क्यों हुआ था मेरे साथ. Yeah, one is criticism कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे को ही ऐसे सब लोग क्यों बोलते हैं, या why am I looking so whatever about yourself also you have. So criticism में क्या आ रहा है आपके, fears क्या है आपके, guilt क्या है जो आपने होल्ड किया हुआ है, और resentments क्या है जो आपने होल्ड किए हैं. आपने वो सब उनके नीचे लिखने हैं, राइट? अगर नहीं क्लियर है तो बाद में पूछ लेना एक बार पूरा पढ़ लेने के बाद. हाँ जी, पॉइंट नंबर 2. Number 2, from step 1, take the 2 categories you wrote the most about and write down 10 positive affirmation in each category. For example, if one of the categories is resentment, you might write affirmations like, I now choose to release all hurt and resentment. The more resentment I realize, the more love I have to give. Realize नहीं, release.
release. Read it again. The more resentment I release. The more resentment I release, the more love I have to give. ओके अभी करना क्या है, आपने 4 कैटेगरीज बनाई, कॉलम बनाए, उसमें आपने लिखा अपने एक्सपीरियंसेस लाइफ के, क्रिटिसिज्म, गिल्ट, फियर, गिल्ट एंड रिजेंटमेंट. अब कौन सी ऐसी कैटेगरीज में जिसमें आपने सबसे ज्यादा लिखा है? इट कुड बी क्रिटिसिज्म, इट कुड बी फियर, इट कुड बी गिल्ट और इट कुड बी रिजेंटमेंट. इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, एंड आप इसको छोड़ ही नहीं पा रहे हो. तो इससे कौन सी ऐसी 2 कैटेगरीज हैं जिसमें आपने मैक्सिमम लिखा है? आपने वो 2 कैटेगरीज उठानी है और उन कैटेगरीज के बारे में आपने 10 पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखनी है. अब 10 लिखना तो आपको आता ही है. I mean, you know how to write 10 gratitudes, so 10 affirmations also will be easy for you to write. तो जो भी कैटेगरी है, क्रिटिसिज्म को है लेकर, तो आपने क्रिटिसिज्म से के लिए कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखनी है. फियर है तो फियर के लिए कुछ लिखनी है, गिल्ट है तो गिल्ट के लिए कुछ लिखनी है, रिजेंटमेंट के लिए तो उसने एग्जांपल दे दिया कि रिजेंटमेंट के लिए आपको किस तरह से लिखना है. तो ये आपकी इमेजिनेशन में है कि आप क्या क्रिएट करते हो, कैसे अफर्मेशंस क्रिएट करते हो, but they have to be positive affirmations. Okay, now let's go to point number 3. Number 3, everything in our lives is a mirror of who we are. Think of the people in your life who are the most challenging for you. What are the traits that bother you most about them? Write those down. Number 4, look at the traits that you listed in step 3. Write down how each one of these traits mirrors a belief that you have about yourself. You might also want to jot down what you have learned about yourself in doing today's exercises. Okay, now point number 3 is कि आपको कोई इंसान है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत चैलेंजिंग है. अब उसमें एक पर्टिकुलर ट्रेट है जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उसके अंदर, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप जो है वो चैलेंजिंग है. आपने वो ट्रेट लिखना है. अब ये ट्रेट मतलब कोई भी एक ऐसा उनका करेक्टरिस्टिक्स जो आपको पसंद नहीं है, या तो वो बहुत चुगली करते हैं, या बहुत लाउड बोलते हैं, या जो भी व्हाटएवर अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं, कुछ भी उनके बारे में जो आपको नहीं पसंद है, वो आपने उनका एक वो ट्रेट देखना है. वो ट्रेट क्या है? एंड एज वी हैव जस्ट लर्नड इन दिस चैप्टर कि हमारे एक्सपीरियंसेस जो भी होते हैं वो हमारे ही बिलीफ को मिरर कर रहे होते हैं. तो आपने देखना है कि वो ट्रेट जो है वो आपकी लाइफ में आपके कौन से बिलीफ से मैच कर रहा है. आप अपने बारे में ऐसा क्या बिलीफ बना के बैठे हो जो उसके इस बिहेवियर में रिफ्लेक्ट कर रहा है. अब ये थोड़ा सा सोचने का काम है और थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. नहीं समझ आएगा तो आप प्लीज इसको एक बार दोबारा पढ़ना, इस पूरे पैराग्राफ को और इससे पहले वाले को भी. You will understand. Even still, if you don't not have any clarity, give me a call and we will talk about it. But it is very clear कि हमें जो दूसरों में चीज पसंद नहीं आती है वो कहीं ना कहीं हम कर रहे होते हैं. जैसे उसने पहले इसी में चैप्टर में पहले बोला कि when you are being criticized at work, so you are critical. You are criticizing people or situations in life, or you have taken that criticism from your parents and you have become critical about things. और वही हमें बाकी लोग मिरर कर रहे हैं हमारी जिंदगी में. Because we also say that there's no one out there. बाहर, आपके बाहर कुछ नहीं है. जो आपके सामने है वो आप ही का रिफ्लेक्शन है, वो आप ही को मिरर कर रहा है. So we say this in our trainings also, and that is true also. कि जो आप दूसरे में अच्छा नहीं लग रहा आपको, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर है. वो कोई ना कोई बिलीफ के रूप में बैठा है या आपके कैरेक्टरिस्टिक के रूप में बैठा है. तो आपने वो देखना है वो क्या है. ओके ओके. And then after doing all this exercise, just write कि आज की एक्सरसाइज से आपने अपने बारे में क्या जाना. कुछ ना कुछ तो नया आपको अपने बारे में पता चला कि वो क्या चीज है जिसकी वजह से आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस लाइफ में हो रहे हैं. इट कुड बी बिकॉज ऑफ दीज 4 बिग फोर्स, और ये बिग फोर्स को हम कैसे अफर्मेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं,
और ये प्रोसेस जो है ना इज जस्ट अ बिगनिंग. जैसे जैसे हम इस चीज को प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, वी विल स्टार्ट मास्टरिंग इट. Life is going to be totally transformed. Yeah, that is why we are here. Yeah, your heart thought. Your heart thought for the main course. I can let go. We create habits and patterns because they serve us in some way. It is amazing how many illnesses we create because we want to punish a parent. We may not be doing this consciously. In fact, in most cases, it is not conscious. But when we start looking within, we find the pattern. We often create negativity because we do not know how to handle some area of life. If that's the case, ask yourself, what am I feeling sorry about? Who am I angry at? What am I trying to avoid? How do I think this will, how do I think this save me? Okay, so अभी जब ये पढ़ रहे थे ना तो मुझे अचानक एक चीज याद आ गई. When I was small ना, जब मैं स्कूल में थी, तो जब मुझे अपने मम्मी पापा पे गुस्सा आता था ना तो मैं बहुत रोती थी, बहुत रोती थी. और मैं रोते रोते पता है क्या करती थी? मतलब वेरी स्टूपिड थिंग. मतलब अब मैं सोच रही हूँ, एंड इट जस्ट फ्लैश्ड व्हेन यू वर रीडिंग इट. मैं ना बहुत सारा अमचूर खा लेती थी. एंड आप सोचोगे अमचूर क्यों खाती थी मैं? अमचूर खाऊंगी तो मेरा गला बंद हो जाएगा, बिकॉज मैं रो भी रही हूँ और अमचूर भी खा रही हूँ. दिस वाज माय वे ऑफ पनिशिंग देम. आई मीन, मतलब मैं अचानक ये कहाँ से याद आ गया मुझे. एंड I'm just thinking how like we do things to punish our parents or punish others, you know. And when you start looking at it, कि ऐसा क्या था? What am I feeling sorry about? Yeah, who can I forgive? अब जहां पर मुझे अगर मेरे पेरेंट्स ने डांटा तो I should have been able to forgive them. बट वो शुड तो था ही नहीं ना उस टाइम पे, और हमें समझ में नहीं थी इतनी इन सब चीजों की. बट नाउ व्हेन आई एम जस्ट रीडिंग दिस एंड मुझे वो फ्लैशबैक दिखाई दिया, I actually used to do that to punish them. चाहे उस प्रोसेस में मैं अपने आप को पनिश कर रही थी. और हम ये लाइफ में बहुत जगह करते हैं, दूसरे को तकलीफ पहुंचाने के लिए हम अपने आप को तकलीफ पहुंचाते हैं. You want your child to listen to you and you say मैं आज पूरा दिन खाना नहीं खाऊंगी जब तक तू मेरी बात नहीं मानेगा. We are trying to punish that child, but we are punishing ourselves also. I mean, you have to start looking at things like this in life. कि इसमें क्या कर रही हूं मैं, या मैं क्या कर रहा हूं, किसको पनिश करने की कोशिश कर रहा हूं, किसको फॉरगिव करना चाहिए मुझे. When you start looking at all these things ना, you will be able to let go of that. And amazing यार, कैसे एकदम से ये सब ध्यान आ गया मुझे एकदम से कि मैं कैसे पनिश करने के लिए उनको अमचूर चाट जाती थी. मतलब पूरा अमचूर हाथ पर रख के चाट जाती थी कि मैं रोते रोते खाऊंगी और मेरा गला बंद हो जाएगा. पता नहीं कहाँ से दिमाग में आया था मुझे, पता नहीं कहीं पढ़ा भी नहीं था मुझे, पर ये लगा मुझे कि ये करने से ना ये हो जाएगा. एंड देन दे विल फील सॉरी अबाउट इट कि इन्होंने मुझे ऐसा क्यों बोला था और मैं इतना रोई हूँ. कैन यू बिलीव इट? दिस इज जस्ट वन स्मॉल इंसिडेंट. व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग इनटू योर लाइफ कि आप कैसे पनिश करते हो, दूसरों को पनिश करने के लिए क्या क्या करते हो आप. लाइफ इज अमेजिंग यार. Okay, just keep reading and just keep digging deeper and find out कि क्यों करते हैं हम ऐसा, किसको forgive करना चाहिए हमें, क्या फीलिंग है उस टाइम पे हमारे पास, उसको कैसे रिलीज करना है, so that we are at peace. Yeah. If you're not ready to let if you're not ready to let something go, you really want to hold on to it because it serves you. It doesn't matter what you do. You will not be able to let it go. However, when you're ready to let something go, it is amazing how easy it is to release it. Yeah. So
हम जब भी कुछ कर रहे होते हैं, इट इज सर्विंग अस ना, हमें कुछ ना कुछ तो मिल रहा होता है उसमें, कुछ ना कुछ हमें उसमें मिल रहा होता है। पे बैक, जैसे हम बोलते हैं ना, उसमें आपको पे बैक क्या मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है उसमें, कुछ ना कुछ तो मिल रहा होता है। अब जैसे मैंने वो वाला इंसिडेंट बताया अपना, तो मुझे क्या मिला था, एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, मैं इनको पनिश कर रही हूँ ना, आई एम एक्चुअली पनिशिंग देम। तो वो एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा था कि मैं इनको तंग कर रही हूँ, इन्होंने मुझे रुलाया, मैं इनको तंग कर रही हूँ। तो कुछ ना कुछ हमें मिल रहा होता है, बट आर यू रेडी टू लेट गो ऑफ व्हाट यू आर गेटिंग इन दैट, बिकॉज दैट्स नॉट सर्विंग यू इन लॉन्ग रन। अगर मैं आज सोचती हूँ तो डिड इट सर्व मी, नो। कहीं ना कहीं वो रिजेंटमेंट मैंने वो पकड़ रखी थी अपने बारे, अपने पेरेंट्स के बारे में ना, इट वाज नॉट सर्विंग मी। एंड जस्ट इमेजिन कितनी लेयर्स है ना, कितने सालों, मतलब इमेजिन some 50 years ago I must have done it, 50 plus years ago, एंड वो आज मुझे दिखाई दिया। सोचो कितनी लेयर्स हैं जो हमें पता ही नहीं है। जस्ट इमेजिन, इट्स अमेजिंग यार। या डे 4 मेडिटेशन, एंड read it like a meditation, huh? Yes, ma'am, I'll try. Your day for meditation, a new decade. See a new door opening to a decade of great healing. Okay, 1 second. I want everybody to sit straight with your eyes closed and just listen to each and every word being said. Healing that we have not understood in the past. We are in the process of learning about all the incredible abilities that we have within ourselves. We are learning to get in touch with those parts of ourselves that have the answers and are there to lead us and guide us in ways that are for our highest good. See this new door opening wide and imagine stepping through it to find healing in many, many different forms. For healing means different things to different people. Some of us have bodies that need healing. Some of us have hearts that need healing. Some of us have minds that need healing. So we are open and receptive to the healing that each person needs. We open the door wide for personal growth. We move through this doorway knowing we are safe, and so it is. Yeah, thank you so much. Thank you for Thank you, reading ma'am. today's chapter. So, Thank you, ma'am. yeah, and every day थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ेगा, because सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक हम लोग ये सब प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे, जब तक हम ये जर्नलिंग नहीं करेंगे, वी विल नॉट डीप डाइव इनटू आवरसेल्व्स एंड फाइंड आउट कि हमने क्या कुछ पकड़ा हुआ है, क्या 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 कुछ है जो हमें परेशान कर रहा है, जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं दे रहा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट? सो टुडेज चैप्टर नीड्स लॉट ऑफ सोल सर्चिंग। सो जर्नलिंग बहुत ध्यान से करना, एंड एज आई मेंशन के आज के सेंटेंसेस ज्यादा हैं, यू कैन राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट एंड अपने मोबाइल में, एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड रीड इट अलाउड, read it 3 times, right? And journaling करना, and आज का meditation भी बहुत अच्छा है, it's opening a door to a new experience, right? So anybody has any question can ask right now. Ma'am, I want to ask one question. It's going in my head. Yeah, Ma'am, the chapters of this book are very, very deep. And ma'am, I sometimes feel that, I am not capable. I can't do so much searching.
हाँ, See तो आई एम नॉट what गुड I'm इनफ, ये सब आई एम नॉट गुड इनफ वाली फाइल में जा रहा मैम, ये है। मन में आ जाता है मैम कि पता नहीं इतना सोल सर्चिंग मेरे को आता है, कैन आई डू इट, इतना डीप थॉट, ये डीप समझ पा रही हूँ, मतलब आई एम सेइंग व्हाट आई फील. Yeah, I know that, and you're not the only one. Yes, You're not the only one because we are not used to it. तो हमें ये लगता है कि हम कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. yes ma'am. या तो सिर्फ मिरर के सामने खड़े होके बोलना है, yes you can do it. And Archana, you are right. The same is the case with me also. Like मैं भी कभी एक्सरसाइज करते करते मैं रुक जाता हूँ, मेरे को कॉन्वर्सेशन नहीं आता कि मेरे से हो नहीं पाएगा. And I feel and my experience of myself is of being small. मैं वही तो कह रही हूँ, you're not the only person. I'm also going through the same thing. We all are going through the same thing because we are not used to it. हमें सरफेस पे काम करने की इतनी आदत पड़ चुकी है ना, हमें डीपर जाने की आदत ही नहीं है. हमने कभी अपने आप से बात ही नहीं करी ना. Right. हमने अपने आप को कभी जाना ही नहीं है, तो वो थोड़ा सा फियर आता है. कभी कभी ये भी लगता है पता नहीं क्या क्या निकल के आएगा. बट अपने बारे में तो बात कर रहे हैं हम, किसी और के बारे में थोड़ी कर रहे हैं. Right. तो जितना अपने आप को हम समझ पाएंगे उतना ही हम अपने आप से कनेक्ट कर पाएंगे ना, उतना ही अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा पाएंगे. We know we have challenges in life, whether it is to do with the health, whether it is to do with the money, whether it is to do with business or career or relationships. वो हमने मैजिक के थ्रू भी उस लेंस से भी देखा था एंड उसके थ्रू भी कुछ काम किया था. Now it is another dimension to it. How can we work on it through our own self? हम अपने अंदर से किस तरह से इन सब चीजों को हटा सकते हैं ताकि हमारा वो जो प्योर रियल सेल्फ है वो शो अप करे. और वो इतनी लेयर्स है ना, वो लेयर्स को निकालने में ही हमें बहुत एफर्ट लगने वाला है. और वो सोच के डर लग रहा है कि वो एफर्ट हम कर नहीं पाएंगे बिकॉज वी आर नॉट यूज्ड टू इट. हमें ऑफिस का काम दे दो हम कर लेंगे, 12 घंटे दे दो कर लेंगे, बिकॉज दैट इज इजी बिकॉज वी कैन डू इट. और जब अपने ऊपर काम करने की बात आती है ना, तो हमें बहुत मुश्किल लगता है, बड़ा डिफिकल्ट टास्क लगता है. बट वंस यू स्टार्ट इनटू द ग्रूव ऑफ इट, आप उसको समझना शुरू कर लोगे, उसके बाद इट्स गोइंग टू बी लाइक अ ब्रीज. क्योंकि तब तो आपको समझ आ जाएगी ना करना कैसे है. बट वो इनिशियल का 1 वीक इज गोइंग टू बी टफ. ये 1 वीक अगर आपने if you go through this 1 week, then it is going to be easy. But ये 1 week is very challenging because we are not used to it. Yeah. Yes ma'am. The only thing is कि ये thought जब आएगा, इसको उसी वाली फाइल में वो चला जाना है. I'm not good enough. The only thing is उसी टाइम पे कुछ positive affirmation बोलना है. Whatever works for you. वो एक positive affirmation. Vandana, you can do it. Vandana, it's for you, your good. It's for your high self. Yeah, Archana, this is for your own self. This is the first time you're working on your own self. You deserve it. You're worthy of it. So when you start saying these things to you, you will be able to do it. Yeah. Yes ma'am. Thank you so much ma'am. You're welcome. वीना जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? हेलो. हाँ जी. रंजन. यस. या रंजन जी. हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि कल जो हार्ट अफर्मेशंस के बारे में बोला था, तो उसमें क्या हम करें? मतलब कुछ नहीं, बोलते रहो दिन में 10 दिन में बोलते रहो. वो मुझे समझ में नहीं आया. जो हार्ट अफर्मेशन है ना, वो सिर्फ ये है. आपको याद है हमने हार्ट एक्सेस हार्ट वाली हार्ट मैजिक वाला वो किया था, करा था. हाँ, करा था. सो व्हाट यू कैन डू इज आप उसको उस लाइन को ऐसे महसूस करें कि आपके हार्ट से निकल रही है वो आवाज. ओके. वो एक सेंटेंस जो होता है हार्ट मैजिक का, एक ही लाइन होती है वो. ओके. या उसको ऐसे महसूस करें. आप चाहो तो अपने दिल पे हाथ रखकर ऐसे उसको पढ़ लो, या ऐसे महसूस करो कि वो आवाज ही आपके दिल से आ रही है. राइट. और कल मैंने देखा कि हम लोग रियली बात करते हैं ना, तो
कभी अपने को राइज अप करके नहीं करते हैं। अब जैसे कल ही मैंने देखा, मैंने कहा ओहो मेडिसिन खाते खाते बाल तो सारे ही खत्म हो गए। ये फिर बोलने के बाद मेरे को ध्यान आया, बट अब इसे कैसे बोले? हाँ, तो आई मीन आप यू कैन ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर द मेडिसिन ना। जैसे मैं अभी सुबह बात कर रही थी कि मेरा भी जुकाम पूरा से ठीक नहीं हुआ, तो जैसे आई वाज क्लियरिंग माय नोज एंड आई वाज क्लियरिंग माय थ्रोट इन द मॉर्निंग, तो एक सेकंड के लिए आया यार ये कब तक चलेगा, यू नो, बिकॉज दैट इज द डिफॉल्ट मोड ना। इमीडिएटली आई जस्ट स्टार्टेड पेइंग ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सो मच दैट इट इज कमिंग आउट and you're clearing my nasal passage and you're clearing my throat, thank you so much, and I was just getting grateful for that. तो वो जो चीज दिमाग में हमारे ये चलती रहती है ना नेगेटिव चीजें, उसको सिर्फ पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, कुछ अफर्म करना है। आपको दवाई खाते टाइम, आपको दवाई खाने से कुछ इंप्रूवमेंट तो हो रही होगी ना लाइफ में, जिस चीज की भी आप दवाई खा रहे हो उस चीज में आप कुछ फायदा तो हो रहा है, तभी आप खा रहे हो ना दवाई। So just be grateful for that. And at the same time, you can always be grateful for your hair also. कि मेरे बाल कितने अच्छे होते जा रहे हैं, मेरे बाल कितने अच्छे होते जा रहे हैं। हाँ, मैंने देखा कि सुबह से शाम तक हम पॉजिटिव नहीं बोलते अपने लिए, yeah. कमियां ही बोलते रहते हैं। That's true, because we are always judging ourselves. और हमारे हिसाब से जज हम क्यों कर रहे होते हैं? बिकॉज एक पीछे से आ रहा है हमारे कि बाल बड़े अच्छे होने चाहिए, है ना। पीछे से हम सुनते आ रहे हैं ना कि औरत की सुंदरता उसके बालों में, जितने घने बाल होंगे, जितने सुंदर बाल होंगे, उसकी सुंदरता बढ़ाता है। ये हम सुनते आ रहे हैं ना, एक बिलीफ बन गया हुआ हमारे लिए, है ना। तो हम वी ट्राइंग टू मैच विद दैट। वो जब नहीं मैच होता तो हम अपने आप को जज करना शुरू करते हैं, क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं। बट एट द सेम टाइम you have a choice, you know, जैसे आप उसको चॉइस में चेंज कर लेते हो ना, then you can always say मेरे बाल अभी भी कितने सुंदर लगते हैं ना, you can always keep saying this, मैं आज भी कितनी खूबसूरत लगती हूँ। you can कुछ भी पॉजिटिव बोलना शुरू कर दो, बस वो नेगेटिव वाले जो मोड है ना उसको चेंज करना है, उसमें से निकलना है। नहीं, एक बात और होती है, हम अपने को कंपेयर भी करते हैं, अदर्स से नहीं तो अपने पास्ट से ही अपने को कंपेयर करते हैं कि पहले मैं ऐसी थी, अब ऐसी हो गई हूँ, तो जज कर रहे हो ना। हाँ, बेसिकली यू आर जजिंग योरसेल्फ। तो अगर आपको अपनी आंखों में देखकर आप अपने आप से प्यार करना शुरू कर दोगे ना, तो अंदर वाले इंसान से प्यार करना शुरू कर दोगे। जैसे मैंने बोला कि जब आप फ्रेंडशिप करते हो तो आप जिसके साथ फ्रेंडशिप करते हो उसकी आपको वो इंसान अच्छा लगता है, तब फ्रेंडशिप करते हो ना। ये थोड़ा देखते हो कि वो बाहर से कितना खूबसूरत है, कपड़े कितने अच्छे पहनता है, कितने अच्छे घर से आता है, कितनी बड़ी गाड़ी है, ये सब तो हम देखते नहीं ना। नहीं, जब वो गाना भी जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, है ना। तो जब हम किसी से कनेक्ट होते हैं तो हम उसके सिर्फ मन को देखते हैं, हम उसके इंटरनल इंसान को देखते हैं। पर जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम अपने आउटर वर्ल्ड को देखते हैं कि हम कैसे फिजिकल वर्ल्ड को देखते हैं। तो हम वो जज करते रहते हैं। तो ये वाली प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं अपनी आंखों में देख के बोलने की, ये इसीलिए कर रहे हैं कि हम वो अंदर वाले इंसान जो आपको रिफ्लेक्शन में दिखता है उसकी आंखों से आप उसके अंदर झांक सकते हो ना, तभी आप उसकी आंखों में देखते हो। आप उसकी आंखों में देख के ये बोलोगे तो आप उसके अंदर आत्मा में झांक सकते हो, आप उससे अंदर से कनेक्ट हो सकते हो। सो दैट इज व्हाई उसमें हम झूठ भी नहीं बोल सकते। जैसे फैक्ट है ये कि अपनी आंखों में देख के झूठ नहीं बोला जा सकता है। हाँ, तो वो झूठ नहीं बोलना है, बट अपने आप को गलत भी नहीं बोलना है, नेगेटिव भी नहीं बोलना है, क्योंकि हमने जज नहीं करना है अपने आप को। बट मैं वही बता रही हूँ कि जब पहली बार मिरर एक्सरसाइज करी थी तो द मोमेंट आई लुक्ड इनटू माय आईज आई वाज जस्ट क्राइंग कि तूने अपनी हालत क्या बना ली है, क्या किया तूने अपने साथ अपनी जिंदगी में, यू नो, इट वाज लाइक दैट। एंड जब हमने फर्स्ट डे की एक्सरसाइज करी आई वांट टू लाइक यू, मतलब इतना लग रहा था कि इतनी सैड सी शक्ल जो शीशे में दिखाई दे रही है इसको मैं कैसे लाइक करूं, कैसे बोलूं कि मैं तुझसे प्यार करना चाहती हूँ। So that connection will start get built, धीरे धीरे बिल्ड अप होगा। अभी तो आज चौथा दिन है, आगे आगे देखिए होता है क्या। थैंक यू। You're welcome. Pramila, you have a question? पागल वागल तो नहीं होगी कहीं तू?
Pramila? Yeah. Yes, I'm on unmute. So the question is like this. When we are too much optimistic or more affirmative, trying to not realize our weaknesses like guilt or fear, and we just try to be optimistic, will that not be overconfidence and ignoring everything? 1 second. Varun, can you be on mute, please? Yeah. Varun, can So you can be on I- mute, please? 1 second, yaar. Do you want me to repeat again? 1 second, let me just mute him. Yeah. Okay, yeah, please continue. So I'll repeat again. So what I'm No, asking I got is, I got your question. So what you're saying is that wherever you are doing affirmations, are you getting confident about yourself? No, we are not talking about overconfidence. We are only talking about getting over the past limiting beliefs. So when you do this exercise today of making these 4 columns and start writing in that, you will see how these 4 big fours are snatching away or actually stealing away all the goodness from you. And the only thing we are going to do is we are going to just see how they are impacting us. And उसमें से 2 areas जो सबसे ज्यादा हमें परेशान कर रहे हैं, उसके लिए आपने affirmations लिखना है. So that will help you to get over those negative past experiences which you're holding on to it. It is not going to impact your, the confidence level. It's not going to give you overconfidence. It is only going to give you confidence, self-worth, which you are not having right now. क्योंकि हमें लगता है हमारी self-worth हमें पता है, but we don't know our self-worth. Because we don't know how to evaluate the self-worth. जो हम उसको evaluate करने के लिए use कर रहे हैं, that is not what is self-worth. We are learning how to analyzing our self-worth. उसको self-worth को कैसे ढूंढना है अपने आप को कैसे पहचानना है. We are in that process. So confidence, overconfident तब आता है जब आप outer world में कुछ project करने की कोशिश कर रहे हो. यहाँ पे you're working on your inside. आप internally अपने ऊपर काम कर रहे हो. आप कहीं बाहर जाके ये सब नहीं बोल रहे हो. Are you getting my point? Yeah. You're not projecting it outside. You are actually working on your own self. जब आप अपने ऊपर काम कर रहे हो तो आपके अपने एक्सपीरियंस के ऊपर काम कर रहे हो. You're not working on anybody else. तो वो ओवर कॉन्फिडेंट कहाँ से आ जाएगा? कहाँ से दिखेगा? अभी तो आप अपने ऊपर ही काम कर रहे हो. आप अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हो. आप ये जानना चाह रहे हो कि आप कहाँ अटके हुए हो. आपको क्या लेट गो करना है. So it's totally a different process right now. Yeah? Okay, thanks. Yeah. या वीना जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं बहुत देर से? I think she's written something. Okay. Yeah, I know. First time in our lives we have started looking at ourselves in the mirror. आज तक तो कभी देखा ही नहीं था उस तरीके से. रिफ्लेक्शन में देखा कैसे लग रहे हैं, that's it. But ऐसे deeply अपनी आंखों में तो कभी पहले देखा ही नहीं है. That's true. Anybody else has any question before we say bye? तो आज का वाला चैप्टर बहुत गहराई से करने वाला है, तो प्लीज do give time to yourself because there is no one else as important as you are, and there's nothing in this world which is more important than your own self. Get this in your bones that you are the most important person. अब तक बहुत नेग्लेक्ट कर लिया अपने आप को. आप तो जाग जाओ. जागे हो इसीलिए सेशन में आए हो, तो अब प्रैक्टिस कर लो. थोड़ी सी मेहनत कर लो अपने ऊपर. दुनिया के लिए खड़े रहते हो यार, अपने लिए खड़े हो जाओ इस बार.
Yeah. Okay, bye bye, and I'll see you tomorrow at 6:15. थोड़ा जल्दी आ जाया करो सुबह. 6:30 तक आते हो, 6:15 पे आ जाया करो, if it is possible for you. Okay, bye bye. Bye. Bye, ma'am. Sure. Thank you.